Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your parents, your friends, your relative, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 3. In that, we had discussed some topic, some of the concept of the regarding the motion. Very firstly, we had discussed about the definition of the motion, what is motion. Then after we discussed the frame of reference. After that, we had discussed the concept of the displacement and path length. And then after we discussed the concept of the average velocity and average speed. Then after we had started to discuss the instantaneous velocity and instantaneous displacement. So I'm going to write down something as a revisional point. So then after, let me write some points as a revision so that your idea will be more clear. Okay. क्या आपके मोबाइल के अंदर ये व्हाइट बोर्ड जैसा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, fine, fine. Okay. Number one, what is motion? Any body change its position with respect to other body, then it is said to be in a motion with respect to other body. So motion is a relative concept. Respective, with respect to matlab ke it is a relative concept. So this is a motion. So a concept of the motion is known to you. Now the second one is path length. So what is the meaning of the path length? So path length is nothing but it is a total distance traveled by a particle or object. So that is the path length. And number three, displacement. So displacement is nothing but it is a, as you know, it is a change in position is said to be a displacement, or I can say it is the shortest distance. It is the shortest distance between initial and final position. So this is what is the displacement. Now the question is that when the body changes its position with respect to the other body, it is said to be in motion. But the question is how fast the body changes its position.
So how fast the body changes its position, so that can be found by the new physical quantity named as average speed. So average speed, why average speed comes in the picture? It came in the picture due to find, it came in the picture to find how fast any object or body change its position in a given interval time. In a given interval of time, so it came in the picture to find how fast, the body change its position in the given interval of time, and that can be found by, that can be found by path length or total distance traveled upon time interval. So that is the average speed. And why the average velocity comes in the picture? So what is the reason behind we are discussing the average velocity? So average velocity we are discussing to find how fast and in which direction, how fast and in which direction the body changes its position, that is to be found by the average velocity. So average velocity is to find how fast and in which direction a body or object change its position. So this is to be found by the average velocity, and the formula for the average velocity, as you know, it is a, it is a displacement upon time. So that is up till now so far we had discussed. Now the question is that the average velocity and average speed gives us, average velocity and average speed gives us the change in position or change in the how fast the object change the position, but it will in the given interval time. But at the different instant of the time, at the different instant of the time, how fast the body changes its position and in which direction, that can be found by the instantaneous velocity and instantaneous speed. So the new quantity comes in the picture, number 6, that is instantaneous speed. Instantaneous speed. So what is it? Why we introduce this concept? What is the reason that we are discussing this topic? The reason is that to find how fast body changes its position at any instant, at any moment, at any instant. So this is why we are discussing the instantaneous speed. And you know the formula, if average velocity or average speed is assumed to be a delta x upon delta t, let's assume that the average speed is equals to delta x upon delta t. Acha, we will go through the formula later on. Let's just find, let's right now writing the just write down the concept formula later on. And number 7, instantaneous velocity.
So why instant? We are discussing instantaneous velocity. So it is to find how fast and in which direction body change its position at any instance. So that is to be found by the instantaneous velocity. Now one point should be noted, should be clear. One point should be very important, should be very clear, that one point should be very clear, that for any given interval of time, for a given interval of time, average speed is always either equals to average velocity. It is either equals to average velocity. कोई बताएगा क्या लिखूंगा? और क्या लिखो? Average speed. For a given interval of time, average speed is always either equals to average velocity or greater than average velocity. Or it is a greater than average velocity. But at any instant, always remember, at any instant, instantaneous speed is having at any instant instantaneous speed and magnitude of instantaneous velocity are same. देखो, कोई भी इंटरवल के लिए अगर हम देखते हैं फॉर एनी गिवन इंटरवल टाइम, तो ऑब्वियसली जो पाथ लेंथ जो होगा वो डिपेंड से या तो ज्यादा होगा या उससे जितना होगा. तो बिकॉज ऑफ दैट average speed is either equals to the average velocity or greater than average velocity. बट अगर कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को सोचते हैं, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस को अगर हम देख लेते हैं, तो एट दैट मोमेंट उसका स्पीड एंड वेलोसिटी सेम ही रहेगा. उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम ही होता है. अगर विदाउट डायरेक्शन हम उसको बोलते हैं, विदाउट डायरेक्शन, तो उसको स्पीड बोलेंगे, एंड अगर डायरेक्शन के साथ उसको बोलते हैं तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे. मतलब सपोज मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और आधे घंटे के बाद, मतलब आफ्टर 30 आवर्स, आफ्टर 30 मिनट्स, एट दैट मोमेंट, एट दैट आफ्टर 30 मिनट्स, एट दैट पर्टिकुलर 30th मोमेंट, 30th मिनट, माय वेलोसिटी एंड स्पीड आर द सेम. मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई अभी जो इंस्टेंस है, एट दैट टाइम माय वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड एंड माय स्पीड इज इक्वल्स टू 70 मीटर पर सेकंड. ऐसा बोल नहीं सकता मैं. कोई भी मोमेंट पे स्पीड एंड वेलोसिटी सेम ही होता है. अगर डायरेक्शन के साथ बोलते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, और अगर के विदाउट डायरेक्शन अगर हम बोलेंगे तो वो बन जाएगा, उसका स्पीड हो जाएगा. तो given interval time, average velocity, average speed is either equals to average velocity or greater than that.
बट फॉर एनी इंस्टेंस, कोई भी एक इंस्टेंस ले लो, तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही है। मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि भाई अभी मेरा स्पीड है ना वो 30 है एंड वेलोसिटी मेरा 10 है, ऐसा बोल ही नहीं सकता। तो फॉर एट द गिवन इंस्टेंस वो दोनों सेम ही हो जाएगा, बट अगर डायरेक्शन के साथ बोलते हो तो वो वेलोसिटी है, एंड विदाउट द डायरेक्शन अगर उसको बोलते हो तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सर हाँ बोलो। Yes, sir. सर बोलो प्रॉपर बोलो। मींस एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच में डिफरेंस का पता नहीं चल रहा है। हाँ, एवरेज जो होता है ना वो टाइम इंटरवल में होता है, कोई टाइम इंटरवल के लिए फाइंड करते हैं हम इसका एवरेज, एंड इंस्टेंटेनियस कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस में फाइंड करते हैं हम, कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे फाइंड करते हैं, उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। एवरेज का मतलब एक आध न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। जैसे ऐसा पूछा है कि व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, मतलब पर्टिकुलरली 2 सेकंड पे अगर स्पीड है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और अगर एवरेज का क्वेश्चन पूछना है तो ऐसे पूछेंगे कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल फॉर द इंटरवल t इक्वल्स टू 0 सेकंड टू t इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो अलग अलग मोमेंट के बीच का जो फाइंड करोगे तो वो एवरेज, पर्टिकुलर मोमेंट पे फाइंड करते हो तो वो इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड सेम ही होता है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम नहीं होता है। ओके, यस चलो और सर बोलो। हाँ सर बोलो बोलो। सर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमको कैसे पता चलता है कि पाथ का नेचर कैसा है? वो नोट्स में लिखा है ऐसा। वो अभी आएगा, वो अभी आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके सर। you will getting idea of that. सर हाँ बोलो। सर ये ऑलवेज के बाद क्या लिखा है? नहीं, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, ऑलवेज के बाद क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो? ऑलवेज के बाद क्या लिखा है? अच्छा, हाँ ऑलवेज आइदर है, आइदर लेट मी क्लियर। Okay, it is either equals to average velocity or greater than that. Okay, यस चलो ये कंसेप्ट हुआ एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर 1 ऐसा है कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड डिफरेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम ही है। डायरेक्शन के विदाउट लिखते हो तो वो है स्पीड, डायरेक्शन के साथ लिखते हो तो वो है वेलोसिटी। फ्रेंड्स कभी भी अगर कोई आपको स्पीड या वेलोसिटी ऐसा वर्ड यूज करे तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आपको कंसीडर करना है। तो कहीं पे भी अगर स्पीड लिखा हुआ है तो उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या होता है, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड इसका मीनिंग होगा। और कभी भी अगर वेलोसिटी कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। ओके, तो ये सारे स्क्रीनशॉट मैं अभी आपको लेक्चर खत्म होने के बाद भेज दूंगा। अब कुछ इक्वेशंस के वाइज सोचते हैं कि इक्वेशन कैसा है। तो हमने ऐसा डिस्कस कर लिया है कि अगर एवरेज स्पीड है तो वो दो अलग अलग इंटरवल, दो अलग अलग मोमेंट के बीच का एवरेज है और टाइम ड्यूरेशन के साथ कंसीडर करना होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लोगे। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हाँ, एंड दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बट हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिस्कस किया था पूरा डिटेल में कि अगर हम ये जो इंटरवल है
वो बहुत ही कम ले ले, अगर इंटरवल बहुत ही कम ले ले तो वो दो अलग अलग इंस्टेंस नहीं रहेगा। टाइम इंटरवल बहुत ही, किसी का मतलब माइक चालू है, उसको बंद कर दीजिएगा ना प्लीज। ओके, अगर ये जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही कम ले लेता हूं तो वो टाइम के दो अलग अलग इंस्टेंस नहीं रहेंगे, वो एक ही इंस्टेंट बन जाएगा। और अगर उसके बाद में एवरेज स्पीड फाइंड करूं, उसके बाद अगर मैं एवरेज स्पीड फाइंड कर दूं तो वो एवरेज स्पीड नहीं रहेगा, वो एक ही इंस्टेंस बन जाएगा। तो मतलब के एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर मुझे क्या करना है, तो in the formula of the average speed, what I need to do, I dx upon dt. I will consider a time interval very small. Mathematically, a very small time interval can be denoted, but mathematically, a very small time interval can be denoted by limit delta t tends to 0. बट ये स्मॉल टाइम इंटरवल ले लेते हैं तो वो टाइम के दो अलग अलग इंस्टेंस ना रहेंगे, वो एक ही इंस्टेंस बन जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड करूं, एवरेज स्पीड फाइंड करूं, तो वो एवरेज कंसीडर नहीं होगा, वो इंस्टेंटेनियस कंसीडर हो जाएगा। एंड दिस कैन बी रिटन एज अ dx अपॉन dt। अब ये कैसे आया ये आपको पूछना नहीं है, ये आपको एक्सेप्ट करना है, ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है। तो इसके ऊपर से ये कैसे आया वो आपको डायरेक्टली अभी याद रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर डायरेक्टली दिस वन। वो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, हम ऐसा याद रख देंगे। ऐसा कभी भी आता है अभी फ्यूचर में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 समथिंग अपॉन समथिंग, देन दैट डेल्टा विल बी कन्वर्टेड इनटू डी dx अपॉन dt। तो ये जो फॉर्मूला है, फाइनली आई कैन सिंपली से दैट एवरेज का अगर फाइंड करना है तो आपको डेल्टा डेल्टा करना है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है तो आपको डी करना है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आपको एवरेज वेलोसिटी देगा, एवरेज स्पीड देगा। dx अपॉन dt आपको देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले हो तो भी चलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो तो भी चलेगा, बिकॉज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम ही रहता है, वो दोनों सेम ही है। तो ये dx अपॉन dt आपको डायरेक्टली याद रखना है। सर ये लेट मी कंप्लीट। तो ये इक्वेशन वाइज हुआ। अब ग्राफ के द्वारा अगर सोचना है ग्राफिकली, तो अगर ग्राफ से सोचना है, बोलो क्या बोलते हो, बोलो। सर अगर ऐसा दिया हो कि फाइंड स्पीड बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 2.1 सेकेंड्स, तो वो एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी ना? नहीं, वो एवरेज होगा। इट इज नॉट द वेरी स्मॉल इंटरवल टाइम। स्मॉल इंटरवल टाइम का मतलब 0.0001 सेकेंड, बहुत स्मॉल। तो डिफरेंस तो सर 0.1 का ही हुआ ना? बट तो भी 0.1 से कम 0.01 है, 0.1 से कम 0.001 है, मतलब इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ एवरेज, it is not considered to be instantaneous, it is considered to be average। मतलब टाइम 1 सेकेंड से कम होना चाहिए? 1 सेकेंड नहीं, टेंस टू 0। अब टेंस टू 0 मतलब क्या, तो बहुत जीरो के बहुत नजदीक, 0.00000 कितना, तो वो कितना है वो कह ही नहीं सकते हम, वो कह ही ओके नहीं सकते, इसीलिए तो मैथमेटिकली उसका सिंबल बनाया है। वो कितना लेना है वो हम कह ही नहीं सकते, इसीलिए तो मैथमेटिकली उसका सिंबल बनाया है कि टेंस टू 0। ओके सर। 0.1 इज कंसिडर्ड टू बी अ लार्ज टाइम, 0.1 इज वो तो बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा। ओके, ओके टॉपिक है वो ये है कि पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा मुझे अभी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे निकालना है, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा। तो वो कैसे मिलेगा, तो वो भी वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, बट आज फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको। ओके,
हमको ये पता है कि पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप जो होता है, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो स्लोप हमको कौन सा क्वांटिटी देगा, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, बोलो। एवरेज वेलोसिटी। Yeah, very good. It is giving us the average velocity. Position versus time graph giving us the average velocity that is known to you. Very good. ये पोजीशन है, ये टाइम है, और सपोज के मैं कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका अगर मैं अलग अलग टाइम इंटरवल पे उसका पोजीशन में नोट डाउन कर रहा हूँ, और पोजीशन को नोट डाउन करते 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 उसका ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है, उसका ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिलता है। और मुझे कोई ऐसा बता रहा है कि भाई भैया आपको 2 सेकंड एंड 5 सेकंड के बीच का जो इंटरवल है, 2 सेकंड एंड 5 सेकंड के बीच का जो इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल के बीच में आपको एवरेज स्पीड फाइंड, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मुझे ये तो पता था कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका अगर वो ग्राफ में अगर हम लाइन, कोई लाइन का अगर स्लोप फाइंड करते हैं तो वो जो स्लोप है वो मुझे एवरेज वेलोसिटी देगा, वो मुझे पता था। तो मेरे पास ग्राफ तो है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कौन से इंटरवल पे चाहिए, तो मुझे ये बताया गया कि 2 एंड 5 सेकंड के बीच के इंटरवल का मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो सपोज कि ये जो है ना वो 2 सेकंड है, ये जो है वो 2 सेकंड का पॉइंट है, और ये जो है वो 5 सेकंड का पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, 2 सेकंड पे एंड 5 सेकंड पे ग्राफ के जो पॉइंट्स है ना उसको मैंने कंसीडर किया। अब मैं क्या करूंगा, ये 2 सेकंड एंड 5 सेकंड को कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं 2 सेकंड एंड 5 सेकंड को कनेक्ट करूंगा और एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो 2 सेकंड एंड 5 सेकंड को कनेक्ट करके मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। तो कोई मुझे बताएगा ये जो लाइन है उसका स्लोप मुझे क्या देगा, कौन, इसका स्लोप मुझे क्या मिलेगा, ये जो लाइन है वो एवरेज। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसका जो स्लोप अगर मैं कंसिडर करता हूं तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है आवाज, इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. तो ये जो है ना, मुझे इसका स्लोप एवरेज वेलोसिटी देगा, इसका स्लोप मुझे एवरेज वेलोसिटी देगा। बट अगर मुझे कोई ऐसा पूछता है कि 2 सेकंड पे, एग्जैक्टली 2 सेकंड पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो लॉजिक मेरा ये है कि अगर 2 सेकंड पे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कंसीडर अ वेरी 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 नियरेस्ट पॉइंट। एक 2 सेकंड पे लिया और दूसरा मैं 2.0001 सेकंड पे लूंगा, मतलब 2 पॉइंट बहुत ही नजदीक में, बाजू बाजू में मिलेंगे, और इसको मैं कनेक्ट करूंगा और एक नया लाइन ड्रॉ करूंगा। उसको कनेक्ट करने के द्वारा एक और लाइन में ड्रॉ करता हूं, considering a time interval very 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 small. So considering a time interval very 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 small, just considering a 2 and 2.000001 seconds. तो ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप ध्यान से देखो, तो ये जो लाइन है वो मुझे कैसा मिल जाएगा, टेंजेंशियल। टेंजेंशियली। तो अगर इसका अगर मैं स्लोप फाइंड कर दूं तो ये मुझे ये स्लोप का मुझे क्या देगा, इसका स्लोप मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। So finally the conclusion is that, conclusion number 1, for a given interval of time, a slope of x versus t, slope of a line in x versus t graph, slope of a straight line, slope of a straight line in a position versus t graph will gives us the
average velocity. But at any instant, let c t is equals to 2 seconds. At any instant, slope of tangent to position versus t graph gives us, slope of the tangent gives us Instantaneous velocity. हाँ Instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मतलब कोई दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके आप जो लाइन बनाओगे तो वो आपको दो पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी देगा, उसका स्लोप. और कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आप टेंजेंट बना दोगे तो वो टेंजेंशियल जो लाइन है उसका स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा. नंबर 3. Sir, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. नंबर 3, अगर कोई मोशन जो है, अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म है, if any object performing the uniform motion, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसका यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा हुआ कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो ऑन दैट काइंड ऑफ मोशन, ऑन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोशन, उसका जो ग्राफ होता है पोजीशन वर्सेस टाइम का, वो स्ट्रेट लाइन रहता है. फॉर ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन. फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? velocity constant. वेलोसिटी उसका कांस्टेंट होता है. ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन वर्सेस टाइम, जो ग्राफ मिलेगा इज अ स्ट्रेट लाइन. So in this case, देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप सोचो तो दो अलग अलग इंस्टेंस को सोचो और उसको कनेक्ट करके आप लाइन बनाने का ट्राई करो, या दो पास वाले इंस्टेंस को कनेक्ट करके लाइन बनाओ. मतलब चाहे आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहोगे या चाहे आप दो अलग अलग इंस्टेंस को कनेक्ट करना चाहोगे, तो आपको सेम टू सेम लाइन मिलेगा. मतलब सेम टू सेम लाइन मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों केस में एक ही लाइन मिला आपको, तो दोनों केस में जो स्लोप मिलेगा वो सेम ही मिलेगा. तो कोई मुझे बताएगा उसके द्वारा मैं क्या कंक्लूजन डिराइव करने की ट्राई कर रहा हूँ? कि एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. यूनिफॉर्म मोशन है उसमें वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी सेम होती है. हाँ. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसका जो ग्राफ होता है पोजीशन वर्सेस टाइम का, वो स्ट्रेट लाइन होता है. तो यहाँ पे आप अलग अलग दो पॉइंट को कनेक्ट करो और लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करो, या नजदीक वाले टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 लेके अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, तो दोनों केस में आपको वही का वही लाइन मिलेगा. जो लाइन है वही लाइन मिलेगा, मतलब स्लोप दोनों केस में सेम मिलेगा. अब टाइम इंटरवल के लिए जो स्लोप है वो एवरेज वेलोसिटी है, और टाइम इंटरवल 0 करके आप जो स्लोप फाइंड करते हो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. बट दोनों लाइन सेम ही मिला, मतलब क्या हुआ कि average velocity and instantaneous velocities comes out to be a same. So in this case, average velocity and instantaneous velocity are same. तो ये चीज क्या आपको समझ में आया? Yes. ये चीज समझ में आया? Yes sir. The important conclusion we obtain,
मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा है, देखो ये जो फिगर नंबर 1 है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसके लिए आप देख सकते हो कि दोनों लाइन अलग अलग है, दोनों लाइन अलग अलग है, मतलब एक एवरेज वेलोसिटी है, एक इंस्टेंटेनियस, वो दोनों अलग अलग है, उसके दोनों के स्लोप अलग है। बट यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप ट्राई करोगे लाइन ड्रॉ करना, तो दोनों लाइन सेम ही हो जाएगा, मतलब कि चाहे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो या चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करो, इट इज कम्स आउट टू बी अ सेम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर नॉट द सेम, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी both are same. Is that clear, friends? Yes, sir. Okay. Yes. चलो मैंने आपको दो हिसाब से, एक इक्वेशन के हिसाब से कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो फॉर्मूला से कैसे मिलता है वो हमने डिस्कस किया, एंड ग्राफ के द्वारा कैसे मिलता है वो भी हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन आपको ऐसा होना चाहिए कि सर हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी तो वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, बट हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय द इक्वेशन। जैसे मैंने ये बता दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो dx/dt है, डिफरेंशिएशन करना है, बट वो करना कैसे है, वो डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ रूल एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको रब करता हूं, इरेज करता हूं, और अब कुछ मैं डिफरेंशिएशन के रूल्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंशिएशन 12th के अंदर भी बहुत बार आने वाला है, 11th के अंदर भी बहुत बार आने वाला है। फिजिक्स के अंदर कुछ मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट यूज हो गए, तो वो जहां पे जो भी कंसेप्ट यूज होता है मैं वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, उसको आपको मतलब यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। सर बोलो। सर लाइन टेंजेंशियल है, उसका मतलब क्या होता है? अरे यार कोई कर्व है तो उसको ऐसे टच होके पास होना उसको टेंजेंशियल बोलते हैं। ओके सर। क्या ये सारा मतलब ये सारा 10th में नहीं है आपका, 8 9 10th में कभी भी? 10th में आया था मैथ्स में सर्कल्स चैप्टर में। ओके ओके कोई बात नहीं, चलो मतलब टच होके पास होना दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट। ओके ओके कौस्तव। यस सर। ओके रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं रूल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो अभी मुझे ऐसा मत पूछना कि इसका प्रूफ क्या है, बिकॉज इसका प्रूफ तो ऑब्वियसली आप कब पढ़ोगे, 12th में पढ़ना हो तो पढ़ोगे। बायोलॉजी वालों को मैं बता दिया, मतलब कंफर्म हो गया, मैं जो बोलता हूँ हमेशा सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलता। तो बायोलॉजी वालों को अभी मैंने बता दिया तो मतलब कंफर्म्ड हो गया। मैथ्स वालों को क्रॉस वेरिफिकेशन मिल जाएगा 12th स्टैंडर्ड में, बट अभी तो सब लोगों के लिए ये रूल्स तो अभी याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। बहुत सिंपल रूल है, इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू x। याद है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, it is said to be a differentiation of x raised to n with respect to x। तो इसका आंसर nx n+1। क्या बोल रहे हो, किसी ने कुछ बोला? बाय एग्जाम्पल x रेज़ टू 5 है, तो याद आपको ऐसे रखना है कि पावर आगे आ जाएगा एंड पावर को 1 का डिक्रीमेंट करना है, पावर आगे पावर में 1 का डिक्रीमेंट। तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर ये dx कहाँ पे चला गया, डिनोमिनेटर वाला dx कहाँ पे चला गया,
तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये डिनोमिनेटर वाला dx कहाँ पे चला गया, आपको ऐसा सोचना है कि ये टर्म जो है उसका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, आपको ऐसा सोचना है। वन मोर एग्जाम्पल, ddx ऑफ सपोज कैसा लिखा है कि 3x², तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो उसको हम पहले डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। कांस्टेंट टर्म आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो अंदर बचेगा क्या, x² बचेगा। चलो अब रूल अप्लाई करो, x² का क्या होता है, 3 तो एज इट इज रहेगा, अब x² का क्या होता है, 2x up x to the power 1. पावर आगे एंड पावर में एक का डिक्रीमेंट, तो 2 - 1 मतलब 1 बचेगा, तो फाइनली 6x. आंसर 6x आएगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। रूल नंबर 2, सर हाँ बोलो। सर तो वो dx अपन dt है तो उसमें t कैसे आएगा, इसमें तो x है तो। हाँ हाँ, वो समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, तो डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। बाय एग्जांपल ddx ऑफ कोई कांस्टेंट k है तो उसका 0 होता है। बाय एग्जांपल ddx ऑफ ओनली 5 तो उसका 0 होता है। देखो कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में है ना तो वो बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो बाहर निकल के आएगा, बट कांस्टेंट टर्म अकेला है तो उसको कोई बचाएगा नहीं, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर आ जाएगा, अगर अकेला है तो उसको 0 हो जाएगा। कौस्तव है वहां पे, कौस्तव, यस सर। कौस्तव कभी गया, हेलो, हाँ कौस्तव कभी तू गया है कहाँ पे? मतलब किसी के साथ तेरा झगड़ा हुआ है, किसी को मारा मारी करने के लिए गया है तू कभी? ना ना सर, ऐसा नहीं करता। नहीं करता, क्या ना बात सर। है, कभी भी नहीं? ना सर, ना क्या बोलता है, कभी भी नहीं? ना ना। अच्छा, हेत हेत है वहां पे, हेत प्रजापति सर गया है तू कभी? नो सर। नहीं गया, मारा मारी करना नहीं गया अभी तक कभी कभी? नो सर। क्या बात है। अच्छा, निसर्ग है वहां पे, निसर्ग यस सर। किसी के साथ झगड़ा हुआ तेरा? नहीं सर। अभी तक कभी नहीं हुआ? नहीं सर। क्या बात है, ये बैच पूरा बहुत ही ब्रिलियंट है। अच्छा, धनपाल, धनपाल है वहां पे, यस सर। गया है कभी तू? नहीं सर। क्या बात है। अच्छा तो बोल रहे सर। अच्छा, Yes. वत्सल है, वत्सल यस सर। गया है तू कभी? नो सर। नहीं गया है। अच्छा मैं बता दूं, चलो अभी किसी के साथ आपका प्रॉब्लम हो जाए, किसी के साथ बवाल हो जाए तो जाने का, बट अकेले कभी मत जाने का, 2-4 जने को साथ में लेके जाने का। पूछो क्यों? अकेला पूछो क्यों, Support रहेगा। नहीं नहीं पूछो क्यों। क्यों सर? क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म अकेला है, अगर कांस्टेंट टर्म अकेला है तो उसका कुछ भी हो नहीं पाएगा, वो 0 हो जाएगा। पर अगर कांस्टेंट टर्म किसी के साथ है तो वो बाहर निकल आएगा, बाकी सब लड़ते रहेंगे। देखो तो इसी की वजह से अकेले मत जाने का, अकेला हो तो 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यस सर। यस sir. सर। 0 होता है, अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो वो बाहर निकल के आएगा, बाकी सबका डिफरेंशिएशन होता रहेगा। इज इट क्लियर? यस sir. सर। ddx ऑफ 5x ऐसा कुछ है, मतलब समथिंग kx, 5. kx है, kx तो Okay. बाहर निकल आएगा और बाकी हो जाएगा dx अपॉन dx। dx अपॉन dx का 1 ही हो जाएगा, dx अपॉन dx का 1 ही होगा। क्यों मैं बताऊं, ये x का 1 पावर ऐसा सोच सकते हैं हम क्या? यस सर। तो अभी अप्लाई करो डिफरेंशिएशन का रूल, पावर आगे एंड पावर में एक का डिक्रीमेंट,
तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अभी किसी का भी 0 पावर मतलब क्या हुआ? 1। 1. तो 1 1 इंटू के मतलब के ही रहेगा। तो आप डायरेक्टली ऐसा याद रख सकते हो कि dx अपॉन dx अगर आता है तो उसका डायरेक्टली 1 कर दो। वैसे वो बाय रूल है कि पावर आगे पावर में का डिक्रीमेंट वो रूल के हिसाब से होता है, बट आप डायरेक्टली अभी याद रख सकते हो कि dx अपॉन dx इज इक्वल टू 1। कैंसल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा। वैसे वो रूल के द्वारा होता है, बट आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। इज इट क्लियर? तो Yes, sir. एग्जांपल अगर ddx ऑफ 2x है तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 2. dx अपॉन dx मतलब 2 रहेगा। इज दैट क्लियर? चलो, टर्म है उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। एक टर्म ऐसी है कि लेट अस वी वांट टू डिफरेंशिएट ddt ऑफ 5t³ माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 8। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 बाई 1 हम सारे टर्म्स के डिफरेंशिएशन करेंगे। dt ऑफ 5t³ माइनस dt ऑफ 3t² प्लस dt ऑफ 2t प्लस dt ऑफ 8। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो सबसे पहले 5 बाहर निकल आएगा। अब 15t square. तो टी 15t क्यूब क्या क्या square. होता है? हाँ, टी 5 बाहर निकल आया और पावर 3. आगे पावर में 1 का डिक्रीमेंट। ओके, अब ये कहाँ पे चला गया? तो ऐसा नहीं सोचना है कि dt गायब क्यों हो गया, ऐसा सोचना है कि हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। हमने डिफरेंशिएशन कर, चलो 3 बाहर, टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t. 2t। पावर आगे पावर में 1 का डिक्रीमेंट 2t प्लस 2 बाहर निकल आएगा तो बचेगा Only 2. dt बाई dt मतलब 1, ओनली 2। अब ये 8 0. अकेला है तो क्या होगा? उसको कोई नहीं बचाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 15t square स्क्वायर माइनस minus 60 प्लस 2। तो plus ऐसे 2. डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ये डिफरेंशिएशन, और भी बहुत सारे रूल्स है डिफरेंशिएशन के और भी बहुत सारे रूल है, बट जब उसका जितना जरूरी है मैं अभी आपको उतना ही बता रहा हूँ। जब जरूरत होगी तो ज्यादा रूल्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। साथ सीखने से अच्छा है जितना जरूरत हो इतना अभी सीखो। तो अभी इतना रिक्वायरमेंट था। डिफरेंशिएशन वैसे बहुत सारे रूल्स है उसके, बट अभी इतना आपके लिए लाजमी है, इतना बहुत हो गया अभी अभी के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। तो अब करना क्या है? ये सब किया तो क्या बेनिफिट क्या होगा? ये करने से क्या बेनिफिट होगा? चलो ये रूल्स तो सब समझ में आ गए, हमने याद भी कर लिया। बहुत बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। पावर आगे पावर में का डिक्रीमेंट है। बट अब ये सब करके बेनिफिट क्या है? तो अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि जिसके द्वारा आपके सारे डाउट्स जो है, सारा जो आपके माइंड में है वो सारा क्लियर हो जाएगा। पूरा चीज कैसे इंस्टेंटेनियस फाइंड करना होता है, कैसे एवरेज फाइंड करना होता है, वो सारी चीज आपको एक क्वेश्चन के द्वारा पूरा समझ में आ जाएगा। तो कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या आपके मोबाइल के अंदर ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 का मतलब क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving along the x-axis is given by something something something, where a is equals to something, b is equals to something. So t is measured in the seconds. तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि what is its velocity at t is equals to 0 second and t is equals to 2 second. मतलब what is the velocity at t is equals to 0 second and 2 second, मतलब क्या हुआ? ये पर्टिकुलर 0 सेकंड एंड 2 सेकंड की बात कर रहा है। मतलब ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। और फिर दूसरा ऐसा पूछा हुआ है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द इंटरवल ऑफ 2 सेकंड टू 4 सेकंड। मतलब ये इंटरवल दिया है तो ऑब्वियसली जो टाइम इंटरवल अगर दिया है तो उसका मतलब क्या हुआ? Average velocity. तो ये क्वेश्चन में दोनों चीज फाइंड करना है आपको, इंस्टेंटेनियस भी फाइंड करना है, एवरेज भी फाइंड करना है। तो मतलब दोनों चीज के कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे हम इंस्टेंटेनियस फाइंड कर सकते हैं एंड कैसे हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। दोनों चीज यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा।
ओके, तो अभी आपको मोबाइल में क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? हम 3.2 ओके, तो आई थिंक आपको मोबाइल में खाली क्वेश्चन ही दिख रहा होगा अभी। Am I right? यस सर। yes Yes. sir Yes, sir. सॉल्यूशन मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। द फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। बट a का वैल्यू भी दिया हुआ है, b का भी दिया हुआ है, तो दोनों के वैल्यू डाल देते हैं, दोनों के वैल्यूज डाल देते हैं। तो a का वैल्यू 8.5 है, b का वैल्यू 2.5 टी स्क्वायर 2.5 है, बट b टी स्क्वायर मतलब 2.5 टी स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो, ये मुझे पोजीशन का फॉर्मूला मिल गया। अब सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मेरे पास अभी उसका इक्वेशन तो है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है? बोलो, अब तो आपको पता है क्या होगा इसका इक्वेशन। हाँ, अगर आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करते हो तो वो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलता है, एंड अगर आप डी एक्स अपॉन डी टी करते हो तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। तो डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। हमको यहाँ पे x का फॉर्मूला दिया हुआ है, सो इन प्लेस ऑफ x आई कैन पुट द फॉर्मूला ऑफ द x। तो x का मतलब पोजीशन का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। तो बात खत्म। अब ये 8.5 का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या मिलेगा आपको? 0. पहला टर्म अकेला है, कोई ना बचाएगा उसको, उसका 0। दूसरे में ना 2.5 टी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन है, तो 2.5 तो बाहर आ जाएगा। अब टी स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? 2t. तो टी पावर आगे पावर में का डिक्रीमेंट। इज दैट क्लियर? 2t⁻1 t⁻1 मतलब t टू t। तो इसका आंसर जो आएगा वो 2.5 into 2 मतलब 5t आएगा। तो ये मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला। अब मुझे कौन कौन से इंस्टेंट पे फाइंड करना है? एक 0th इंस्टेंस में फाइंड करना है और दूसरा 2 सेकंड पे फाइंड करना है। तो अगर 0th इंस्टेंस पे अगर लिखते हो तो 0. 0 तो आपको 0 ही मिलेगा। 0 और 10. अगर 2 सेकंड पे फाइंड करना है तो पुट द t is equals to 2 सेकंड, तो 5, 10 seconds. so you will get a 10 meter per second. Okay. Now you understood how to find the instantaneous velocity from the equation. Yes, sir. अब ये डिफरेंशिएशन मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया उसका मतलब आपको पता चला बेनिफिट कैसा होता है। yes sir चलो, अब दूसरा क्वेश्चन भी है। मुझे फाइंड करना है अभी एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करना है, और वो कुछ टाइम इंटरवल में देंगे। तो whenever they ask the average velocity they must give the time interval, because average velocity always time interval में ही होता है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल इंस्टेंस माइनस इनिशियल इंस्टेंस, क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ? x1 का मतलब क्या हुआ? तो पोजीशन ऑफ x व्हेन द टाइम इज 0, मतलब 0th इंस्टेंस पे जो पोजीशन है दैट इज द इनिशियल पोजीशन। तो पोजीशन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर t इज इक्वल टू 0 प्लेस कर दो, 8.5 प्लस मतलब t इज इक्वल टू 0 प्लेस कर दो, तो वो आपको इनिशियल पोजीशन मिल जाएगा, एंड यू गेट द इनिशियल पोजीशन एज अ 8.5 मीटर। 8.5 मीटर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब फाइनल पोजीशन फाइंड करने के लिए जो पोजीशन का फॉर्मूला है उसमें आप क्या करोगे? माय मिस्टेक, 0th पे थोड़ी फाइंड करना है, इनिशियल पोजीशन कौन से टाइम पे फाइंड करना है? तो दिया हुआ है 2 सेकंड दिया हुआ है, तो मुझे इनिशियल पोजीशन का मतलब 2 सेकंड पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको 2 सेकंड प्लेस, तो क्या आंसर आएगा? 8.5 प्लस 5 into in place of t you can write the 2 second, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2.4। तो इनिशियल पोजीशन जो है ये पता चला आपको। पोजीशन का जो फॉर्मूला है वहां पे टाइम का वैल्यू मैंने 2 सेकंड डाला, तो टाइम का वैल्यू मैंने 2 सेकंड डाला, 18 point. तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मुझे 18.5 मीटर मिलेगा। अब फाइनल पोजीशन मतलब कौन से इंस्टेंस का पोजीशन?
4th सेकंड का, तो अब मैं जो टाइम का वैल्यू है ना वो 4 सेकंड डालूंगा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो 16 इंटू 2.5 मतलब 16 डिवाइड 16 5 48 point. तो इसको 40 हो जाएगा, 40 प्लस 8 मतलब 48.5 हो जाएगा फाइनली। चलो अब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। फाइनल पोजीशन 48.5, इनिशियल जो है वो 18.5 है, टाइम इंटरवल फाइनल मोमेंट 4 सेकंड, इनिशियल मोमेंट 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो 15 मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट लिखना मत भूलना। तो ये जो मिला वो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिला, और ये दोनों जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। तो ये क्वेश्चन के द्वारा आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला अगर दिया हुआ है पोजीशन का, तो कैसे हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एंड कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वो फॉर्मूला के द्वारा हमको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑन दिस। कुछ और क्वेश्चन इसके बेस पे सॉल्व करते हैं, तो ये जो कंसेप्ट है ना वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आंसर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है। यस, देखो 0 पे 0 है, 2 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड है, एंड एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, बराबर है। हमने भी वही आंसर हम लाए थे। इज इट क्लियर? यस सर। लेट्स Yes, sir. सॉल्व सम मोर क्वेश्चन। तो कुछ एमसीक्यूज जो है ना उसको हम सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्वेश्चन है ना वो देख लो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 10? यस यस सर। सर। ओके, Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, यार आपने दिखा डिस्प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, x के बदले y दिया हुआ है, एंड यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t है। एक बात याद रखो, ये y इंटू टी नहीं है फ्रेंड्स, ये y इंटू टी नहीं है, y इज द फंक्शन ऑफ t, मतलब y है ना वो t पे के ऊपर डिपेंडेंट है ऐसा बता रहा है, और कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला y का ही, बट वो t के ऊपर डिपेंडेंट है ऐसा वो बता रहा है, और कुछ नहीं, मतलब है तो पोजीशन का ही फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स हमको दिया हुआ है पोजीशन का जो फॉर्मूला, x के बदले y दिया हुआ है। इन प्लेस ऑफ x द फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ y। वो चाहे y हो या x हो, है तो वो पोजीशन ना, और उसका फॉर्मूला a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी रेज टू 4 ऐसा कुछ है। तो क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स? हम मुझे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। कोई मुझे बताएगा इनिशियल वेलोसिटी मतलब कौन सा वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। हाँ इंस्टेंटेनियस, बट कौन से इंस्टेंस का? इंस्टेंटेनियस, Starting. t is equal to 0 second. हाँ एग्जैक्टली, t इक्वल्स टू 0 टाइम का, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम का वेलोसिटी निकालने के लिए पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो लाना पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स द फॉर्मूला ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यू नो इट इज अ dx अपॉन dt, बट यहाँ पे x के बदले पोजीशन का फॉर्मूला y के फॉर्म में है, तो आई हैव टू राइट अ dy बाई dt। तो अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है फ्रेंड्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लाने के लिए, तो इसका a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी रेज टू 4। चलो डिफरेंशिएशन कर दो भैया। चलो ये a का क्या होगा? 0. कोई ना बचा है, लो। अब बी टी का क्या होगा? B. सो b बाहर निकल के आएगा, और टी डी टी बाई डी टी, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। मैं अभी एक स्टेप एलिमिनेट कर रहा हूँ, चलेगा ना? अब हाँ साथ, sir. हाँ वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक साथ सारे टर्म्स के डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन कर लेते हैं। a बाहर के निकल के आएगा, b a का 0 हो जाएगा, b बाहर निकल के आएगा, dt बाई dt मतलब 0, dt बाई dt मतलब 1 हो जाएगा। अब c बाहर निकलेगा, t स्क्वायर का क्या होगा? dt
2t. तो टी 2t एंड माइनस डी बाहर निकल के आएगा और t⁴ का क्या होगा? 4t cube. cube. हाँ, तो ये हो जाएगा 4t³ इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes sir. अब ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे मिला, वो मिला मुझे b प्लस 2c है. माइनस 4dt⁵ इज दैट क्लियर? अब मुझे कौन सा फाइंड है? तो मुझे पर्टिकुलरली इनिशियल फाइंड करना है। तो इनिशियल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? t को 0. 0 प्लेस कर दूंगा। तो t = 0 प्लेस कर दूंगा मैं, तो पुट द 0 ओवर देयर, तो क्या मिलेगा सोचो? तो b. इनिशियल ओनली b विल बी देयर। इज दैट क्लियर? Yes. चलो, मुझे अब एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। इन एक्सेलरेशन, तो अभी मैंने एक्सेलरेशन आपको सिखाया नहीं है, बट तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन? Change in velocity. Velocity upon time. वेरी गुड। बट अभी आपको, आप जो एक्सेलरेशन बोल रहे हैं वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो एवरेज एक्सेलरेशन है। इट इज अ एवरेज एक्सेलरेशन, बिकॉज वो टाइम इंटरवल में फाइंड करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t है, तो सोच के बताओ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? तो फिर dv upon dt. परफेक्ट, dv upon t. वो सेम टू सेम ट्रैक पे आगे बढ़ो, तो डेल्टा डेल्टा आपको एवरेज देगा, बट dd जो है वो आपको इंस्टेंटेनियस देगा। मतलब पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको वेलोसिटी देता है, बट वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। अगर अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला है? तो हाँ. देखो, ये रहा हमारे पास। So we have the formula of the velocity. We have that formula. So just put the formula of the velocity over there. So b plus 2ct minus 4dt³। तो ये मैंने वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने वहां पे प्लेस किया। अब क्या करेंगे? अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन है ना, वो अभी मैंने वो टॉपिक तो सिखाया नहीं, बट कॉन्सिक्वेंसली आपको समझ में आ गया। तो अब चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। b का क्या होगा? 0. कोई ना बचा है, 0। ओके, फिर 2ct का क्या होगा? 2c. 2c बाहर निकल के आएगा और t का क्या होगा? 1 हो जाएगा। चलो, माइनस 4d एज इट इज, वो बाहर निकल के आया, और t³ क्या क्या होगा? 3t square. 3t2. हाँ, पावर आगे, पावर में का डिक्रीमेंट। तो फाइनली ये हो जाएगा a = 2c माइनस 12dt²। बट मुझे इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब इनिशियल का मतलब t = 0th इंस्टेंस पे। तो पुट t = 0 ओवर देयर, यहाँ पे t 0 प्लेस। 2c. हाँ, तो इनिशियल एक्सेलरेशन आपको 2c मिलेगा। अब देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है कि वेलोसिटी का b ऑप्शन आ रहा है और एक्सेलरेशन का 2c आ रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन है? First. नहीं. C option. c इज द करेक्ट C चॉइस। option. तो क्या फ्रेंड्स आपको समझ में आया ये चीज? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes sir. Yes, sir. ओके, Yes. फाइन। चलो, तो अभी मैं इसको निकालता हूँ और कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, या क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हो। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12। A displacement of a particle varies as per the formula. How does particle take to come rest? चलो, कोई मुझे बताएगा टू कम द रेस्ट का मतलब क्या हुआ? टू कम रेस्ट का मतलब क्या हुआ? Initial velocity. नहीं, कम टू रेस्ट का मतलब आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। Negative. नहीं, Sir, कम negative. टू द रेस्ट का मतलब क्या हुआ? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। नेगेटिव। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। हाँ, वेलोसिटी 0 होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि कब उसका वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब टाइम की बात है, कितना टाइम लगेगा वेलोसिटी 0 होने में?
वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले एक काम करते हैं, वेलोसिटी तो फाइंड करते हैं ना, फिर उसके बाद उसको जीरो करेंगे। पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको जीरो करेंगे ना। तो फ्रेंड्स जो फॉर्मूला है ना, y इज इक्वल्स टू -2/3t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। चलो अब मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी। तो पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो हमको पता है कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पोजीशन। dy by dt. अब है ना, मैं डायरेक्टली करता हूँ। देखो ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसका डायरेक्टली मैं फॉर्मूला का वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो। चलो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो। द वेरी फर्स्ट टर्म, तो -2/3 बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t. तो टी। अभी करूँ ना एक स्टेप में, एक स्टेप अभी निकाल दूँ ना, चलेगा ना? हाँ सर. अब 16 बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आ 16 जाएगा only. और टी का क्या होगा? टी का तो 1 हो जाएगा और 2 का क्या होगा? 0. कोई ना बचा है, 0। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे मिल गया -4/3t. प्लस 16। इज इट क्लियर टू यू? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, अब ये वेलोसिटी मुझे जीरो करना है, बिकॉज आई वांट टू फाइंड द टाइम एट विच द वेलोसिटी बिकम जीरो। तो वेलोसिटी मैंने जीरो कर दिया, तो मुझे मिला 4/3t इज इक्वल टू, इज इट क्लियर? Yes. 4 4 16 and 3 4 12, तो टाइम 12. does it take 12 seconds. to come to the edge as is a 12 seconds? तो क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. there are 2 more questions are there, just try to solve it। ये 13 and 14 को ट्राई करो, बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप सोल्व कर पाओ तो। अभी वो मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लूंगा। बट मैंने फ्रेंड्स आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाया आपको। आज हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड दोनों सेम ही होता है। अगर डायरेक्शन के साथ बोलते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बोलेंगे उसको, अगर विदाउट डायरेक्शन अगर बोलेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। एवरेज वेलोसिटी and average speed may be different, but instantaneous velocity and instantaneous speed is always the same। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर बहुत ही खास था। आज हमने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स डिस्कस किए और डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और मैंने आपको 12th क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में सिखाया था, तो मैंने आपको ऐसा बताया था कि ये यहाँ तक मतलब आधा छोड़ दिया था मैंने वो 12th क्वेश्चन, तो वो आधा आज कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ तक ही बताया था आपको कि नॉट दैट द यूनिफॉर्म, हाँ यहाँ तक बताया था, ये नॉट दैट से बाकी था, तो वो अभी खत्म हो गया कि नॉट दैट फॉर द यूनिफॉर्म मोशन द एक्स वर्सेस टी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is the same as the value of the average velocity। It should be noted that though average speed over a finite interval time is greater or equals to the magnitude of the average velocity, but instantaneous speed at any instance is exactly the equals to the magnitude of the instantaneous velocity at that instance। but अगर डायरेक्शन के साथ बोलते हैं तो वो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस, अगर विदाउट डायरेक्शन अगर बोलते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। हमारा जो स्पीडोमीटर है व्हीकल का, वो स्पीडोमीटर आपको ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। तो आज वैसे मैंने थ्योरी में तो कुछ भी नहीं कराया, मैंने थ्योरी में ये जो 12th क्वेश्चन जो था ना वो जस्ट कंप्लीट किया, बट मैंने बहुत सारे ऐसे चीज सिखाए कि जिसके अंदर पूरा रिवीजन मैंने करवाया और मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू आपको कराए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. तो फ्रेंड्स मैं आज का सेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। होमवर्क क्या है मैं वो भी आपको व्हाट्सएप में बता दे रहा हूँ व्हाट्सएप में। Okay, sir. तो फ्रेंड्स हाँ बोलो हाँ। और ये वीडियो YouTube पे मिलेगा ना? हाँ वो मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो आज का सेशन अभी मैं यहाँ तक खत्म कर रहा हूँ। होमवर्क, हाँ बोलो। होमवर्क, हाँ होमवर्क मैं व्हाट्सएप में भी भेज रहा हूँ। और किसी का अगर फीस बाकी है तो फीस आप ऑफिस में पे कर सकते हो, मुझे ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। प्रोबेबली कल आपको बुक लेना है
मैं आपको मैसेज कर दूंगा अगर कल जेरोक्स आ गया, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली 99% जेरोक्स आ जाएगा, नोट्स आ जाएगा कल, तो कल मेरे यहाँ से आपको कलेक्ट करना होगा, मैं आपको बता दूंगा जो भी है। तो आज का सेशन मैं अभी यहाँ तक खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय। बाय। सर हाँ बोलो। सर वो कलेक्ट करना क्या बोला आपने, पता नहीं। वो नोट्स का कलेक्ट करना आएगा आपको, नोट्स। वो तो बाद में ना, क्लास में ना। हाँ, वो आपको ऑफिस में से ये जो मेरा जो मटेरियल है ना, नोट्स मतलब चैप्टर नंबर 1 to 5 का नोट्स, वो आपको ऑफिस से कलेक्ट करना है कल, मैं अगर मैसेज करूँ तो। ओके। या बाय।